Great afternoon, dear students. Now we are going to discuss our next question, Ohm's law. This is the most important question. So let's start. What is Ohm's law? It states that physical conditions it states that physical conditions such as temperature, pressure, physical conditions such as temperature, pressure, mechanical strain, it states that physical condition remaining unchanged, it is found that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends. It states that physical conditions such as temperature, pressure, mechanical strain remains unchanged. Physical conditions remain unchanged. It is found that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends. It states that physical conditions such as temperature, pressure, mechanical strains remaining unchanged. It is found that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends. So that is क्या लिखा हमने, करंट फ्लोइंग थ्रू एक, क्योंकि बेटा आपको पता है करंट तभी फ्लो करेगा जब आप क्या अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज I directly proportional to B. It is found that current flowing through a conductor directly proportional to potential difference applied across its ends. I directly proportional to V, that is V directly proportional to I. करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि बेटा आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, करंट फ्लो किया. I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मींस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. प्रोपोर्शनैलिटी को आप रिमूव करेंगे, आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट. प्रोपोर्शनैलिटी को आप रिमूव करेंगे, आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट. तो V इज इक्वल टू R I. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Where R आपके पास क्या है, R is the constant of proportionality, where R is constant of proportionality, where R is constant of proportionality and is called as resistance of conductor. Where R is the constant of proportionality and is called resistance of conductor. Its value depends upon the nature of conductor.
ये जो आपके पास रेजिस्टेंस R है, इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, जो रेजिस्टेंस R है ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आपने इसको क्या नाम दे दिया? रेजिस्टेंस। एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, किसकी वैल्यू? रेजिस्टेंस की। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, its value depend upon nature of conductor, its dimension, its dimension and physical conditions। जो स्टेटमेंट है हमारी वो क्या है बेटा? ओम्स लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट फिजिकल कंडीशंस, कौन कौन सी आपकी? टेम्परेचर है, प्रेशर है, मैकेनिकल सेम है, फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग अनचेंज्ड, it is found that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its ends, that is I is the current flowing in the conductor and this is directly proportional to potential difference applied across its ends, that is V directly proportional to I। और जो प्रोपोर्शनलिटी को जब भी रिमूव करेंगे आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट V is equal to R। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज नोन एज द ओम्स लॉ। दिस इज नोन एज द ओम्स लॉ वेयर R is the constant of proportionality and is the resistance of conductor। इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ कंडक्टर, its dimension and the physical condition। So it states that physical conditions such as temperature, pressure, mechanical strength remains unchanged। It is found that current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference applied across its, and this is the most important question। Okay, आगे चले बेटा। Okay, let's come to okay students, now the experimental verification of Ohm's law। This is the figure in which a conductor XY is connected to a battery, a key, rheostat, ammeter and a voltmeter। Ohm's law can be verified by voltmeter ammeter method। A battery is connected to a conductor XY through a rheostat, ammeter and key। Voltmeter of the conductor XY measure potential difference of the conductor as shown in the figure 1। From the figure, then key is closed, current flows through the conductor, reading of voltmeter and ammeter are noted for the different position of the rheostat। देखो बेटा अब हमें क्या करना है? हमें ओम्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है। ये हमारे पास क्या है? जिसपे A लिखा है, दिस इज द एमीटर एंड दिस इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। And ammeter is always connected in series in the circuit। ध्यान रखना इस चीज को, एमीटर को हमेशा किस में जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। और एक बात बेटा मैं आपको और बता दूं, जो भी आइडियल एमीटर होता है, आइडियल IDEL, जो भी आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा 0 होता है। आइडियल IDEL, जो भी आइडियल एमीटर है उसका रेजिस्टेंस हमेशा कितना होता है? 0। और ये आपके पास क्या है? बी लिखा है इसमें वोल्टमीटर। ये किसको मेजर करता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्टमीटर को हमेशा आप किसमें मेजर करते हैं? पैरेलल में। किसमें मेजर करते हैं? पैरेलल में। आपको दिख रहा है यहां से। और जो भी आइडियल वोल्टमीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। आइडियल जो आपके पास वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस हमेशा कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। और आइडियल एमीटर जो आपके पास होता है उसका रेजिस्टेंस हमेशा कितना होता है बेटा? 0। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा इनफाइनाइट। तो सपोज दैट वी हैव अ कंडक्टर XY and this conductor XY is connected to a battery, a key and a rheostat। ये मैंने लिखा बड़े बड़े इसको बोलते हैं rheostat। rheostat जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू को आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो rheostat क्या है? ये भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन कैसा है? वेरिएबल है। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को क्या करते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं।
तो ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास सेटअप आएगा बेटा, जब भी आप इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो भी वोल्ट मीटर की वैल्यू है, जो भी आपकी मीटर है उसको वोल्ट मीटर पे सेट करें, और जैसे आपको एक वोल्ट मीटर पे रीडिंग देते हैं, करंट की वैल्यू वहां से नोट कर लें। वोल्ट मीटर की रीडिंग आपने सेट करनी है, करंट की वैल्यू वहां से चेंज होगी, उसको आप नोट करें। वोल्ट मीटर की सुई को लीडर को सेट करें, करंट को नोट करें। मीन आपने वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करना है, करंट की वैल्यू को आपने नोट करना है। वोल्टेज को वेरी करेंगे, करंट को नोट करेंगे, और आपके पास जब भी वोल्टेज अपॉन करंट की आप रेशियो लेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाएगा। एंड ओम्स लॉ कैन बी वेरीफाइड। Ohm's law can be verified by voltmeter and meter method. A battery is connected to a conductor XY through a rheostat. This is a rheostat बेटा, ये आपका rheostat है। Ammeter and key, ये आपके पास क्या गया, ammeter और ये है key। Voltmeter across the conductor XY measure potential difference of across the conductor। अभी मैंने आपको बताया वोल्टमीटर बेटा क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज मेजर करता है। फ्रॉम द फिगर व्हेन की इज क्लोज, देखो ये सर्किट अभी आपका कैसा है, ओपन। जैसे ही आप यहाँ पे फिंगर प्रेस करोगे, इसको ये की को आप यहाँ से प्रेस कर दोगे, ये सर्किट कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा तो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। एक चीज का बेटा ध्यान रखिए, करंट हमेशा फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट आपका कैसे फ्लो करेगा, ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा फ्रॉम फिगर व्हेन द की इज क्लोज, करंट फ्लोज होगा कंडक्टर, और जैसे ही करंट फ्लो करेगा रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर आर नोटेड फॉर द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द रिहोस्टेट। रिहोस्टेट के अकॉर्डिंग रिहोस्टेट को वेरी करते चलें, और V और I की वैल्यू को आप नोट करते चलें, और जो भी आपके पास V और I की रीडिंग्स आएंगी एंड इट इज ऑब्जर्व दैट V अपॉन I इज कांस्टेंट। तो जो भी आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आप चेंज करोगे, करंट की वैल्यू आपके पास आएगी। वोल्टेज जैसे हमने 5 रीडिंग ली, वोल्टेज की वैल्यू हमने सेट की, करंट आपने नोट कर लिया, वोल्टेज की वैल्यू आपने फिक्स की, करंट आपने नोट कर लिया, वोल्टेज की वैल्यू आपने चेंज की, करंट आपने नोट कर लिया। तो जो भी आपके पास V और अपॉन I की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। दस ओम का इज वेरीफाइड। नीचे बेटा मैंने नोट लिखा है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ R डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। जो भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, dimension and temperature. It does not depend upon the value of V and I. जो R की वैल्यू है वो V और I की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखें। It does not depend upon the value of V and I की रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर्स। क्लियर है ये। एक चीज आपको बता दी, एमीटर को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो मेजर द इलेक्ट्रिक करंट किस में जोड़ा जाता है, मिक्सर सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस किस में जोड़ा जाता है, हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है सर्किट में। क्लियर, चलिए आगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इसके VA-6। देखो आपके पास यहाँ पे दो ग्राफ आपको दिख रहे हैं, V और I का ग्राफ है, I और V का ग्राफ है। देखो रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा, रेजिस्टेंस अभी हमने ओम्स लॉ स्टडी किया। रेजिस्टेंस हमारे पास होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये वाला हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। देखो द वेरिएशन ऑफ V एंड I थ्रू द टू कंडक्टर्स A एंड B is shown in the figure A. This is voltage, this is the current. देखो स्लोप बेटा किस चीज पर डिपेंड करती है, जो भी हमारा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्राफ से हमने कैसे निकालनी है, और ग्राफ से आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, उसकी स्लोप कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, स्लोप। अब यहाँ देखें आप इसकी स्लोप, V और I की वैल्यू यहाँ से ले लें, ये V की वैल्यू ये यहाँ से आ जाएगी, वोल्टेज करंट आपका यहाँ से आ जाएगा। तो स्लोप किसकी ज्यादा रही है, यहाँ से आपको स्लोप निकालनी है। वोल्टेज आपको चाहिए, हम इसको ऐसे निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। और इसके लिए चाहिए स्लोप क्या है, ढलान किसकी ज्यादा है, ढलान किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो स्लोप किसकी ज्यादा जाएगी, स्लोप B जो कंडक्टर B है इसकी स्लोप ज्यादा है, कंडक्टर A जो है इसकी स्लोप आपके पास क्या है, कम है। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा जाएगा, कंडक्टर B का।
क्योंकि देखो अगर मैं इसको यहां से जोड़ दूं, मुझे देखो वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, इसका यहां पे मैच करेगा, इसका यहां पे आएगा, तो वोल्टेज किसकी ज्यादा आ जाएगी, इसकी ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, यहां से करंट निकालूंगा तो जो B अपॉन I की रेशियो आएगी वो किसके लिए ज्यादा आ जाएगी, B के लिए ज्यादा आएगी, क्योंकि जिसकी स्लोप ज्यादा है बेटा, स्लोप भी समझ रहे हैं, स्लोप ऐसे कैसे फाइंड होते हैं, चेंज अलोंग y एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग x एक्सिस। लेकिन आपको मैं सिंपल तरीके से बता दूं, बिल्कुल बेसिक तरीका ये बता दूं, स्लोप किसको बोलते हैं, ढलान को बोलते हैं। ढलान देख लो किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी ढलान ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, the variation of B and I through two conductors A and B is shown in the figure A. It is represented by a straight line having slope B upon I are higher the slope, higher will be the resistance। कि जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। स्लोप आपको क्या बता देना है, ढलान, तो यहाँ स्लोप किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा। You can see from here, higher the slope, higher will be the resistance। So from figure A, conductor B has higher slope and it has higher resistance than the resistance of conductor A। कंडक्टर B has higher slope, कंडक्टर B जो है उसकी स्लोप ज्यादा है, कंडक्टर A की स्लोप कम है, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, कंडक्टर B का। रेजिस्टेंस किसका कम है, कंडक्टर A का। रीजन आपको बता दिया, क्योंकि अगर ग्राफ से आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, चेंज अलोंग y एक्सिस अपॉन चेंज अलोंग x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस x एक्सिस, क्लियर है। तो इसमें स्लोप किसकी ज्यादा है, कंडक्टर B की ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर B का ही ज्यादा है। इसमें इसकी स्लोप कम है, इसकी ढलान, दोनों की ढलान चेक कर लें, इसकी ढलान देखो ज्यादा है, इसकी कम है, तो जिसकी ढलान ज्यादा है, जिसकी स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, जिसकी स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस भी आपके पास क्या है बेटा, कम है। ठीक है, ओके, फिगर बी में देखें। सिमिलरली IB ग्राफ इज शोन इन द फिगर बी। ये ग्राफ था आपके पास BI ग्राफ, और ये ग्राफ आपके पास कौन सा है, IB ग्राफ। दोनों ग्राफ में डिफरेंस है, चेक कर लेना। ये जो ग्राफ आपके पास है ये सीधा BI ग्राफ, ये जो ग्राफ आपके पास है ये सीधा IB ग्राफ। So similarly IB graph is shown in the figure, slope of IB graph is I upon B is equal to 1 by R। देखो अगर R लेते हैं तो B upon I, और 1 upon R लेते हैं तो I upon B। So resistance of a conductor is inversely proportional to slope of IB graph। तो रेजिस्टेंस यहां से क्या बन जाएगा, 1 upon I upon B। मीन जो रेजिस्टेंस है आपके वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, I upon B के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर I अपॉन V की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, और I अपॉन V की वैल्यू अगर कम होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। मेरा रेजिस्टेंस यहाँ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, I अपॉन V के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन V। अगर I अपॉन V की वैल्यू ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर I अपॉन V की वैल्यू क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ फिगर से चेक कर रहे हैं, I अपॉन V की वैल्यू कम किसके लिए है, B के लिए। I अपॉन V की वैल्यू ज्यादा किसके लिए है, A के लिए। तो मोर विल बी द वैल्यू ऑफ I अपॉन V, स्मॉलर विल बी रेजिस्टेंस। तो जो A है आपका उसका रेजिस्टेंस कैसा है, स्मॉल है, क्योंकि उसकी I अपॉन V की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, और रेजिस्टेंस जो है I अपॉन V की वैल्यू क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो आपका कंडक्टर B है उसमें जो आपके पास I अपॉन V की वैल्यू है वो कैसी है, स्मॉल है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, ज्यादा। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा रहेगा, कंडक्टर B हैज अ हायर रेजिस्टेंस। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ I अपॉन V, मोर विल बी रेजिस्टेंस, लार्जर द वैल्यू ऑफ I अपॉन V, स्मॉलर विल बी रेजिस्टेंस। देखो यहां से जो कंडक्टर A है इसके लिए I अपॉन V की वैल्यू क्या है, ज्यादा, और रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I अपॉन V। इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, कम। तो कंडक्टर A के लिए रेजिस्टेंस आपका कैसा रहेगा, कम। लेकिन I अपॉन V की वैल्यू जो है, जो कंडक्टर B है उसके लिए क्या है, कम है, तो इस कंडक्टर B का रेजिस्टेंस आपके पास क्या आएगा, ज्यादा, क्योंकि I अपॉन V इज स्मॉलर फॉर द कंडक्टर B एंड इट हैज अ हायर रेजिस्टेंस। क्लियर बेटे। तो स्टूडेंट्स आई होप ये ओम्स का बेटा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।